Hello, guys. Welcome to my YouTube channel again. First of all, as you know, that my name is Muhammad Sijad Raja, and I'm teaching in Punjab Group of Colleges. And at the moment, I have launched my YouTube channel just because of the help of the students. Students, you know very well that why there is a need to understand the basic the grammar and the grammar structure and the sentences of structure, because in every field, whether you are doing your IELTS, whether you are doing your MDCAT, whether you are doing your master classes, whether you are doing your CSS examination, and even if you are the students of college, the student of first year class, even the second year and other classes, you need to understand the basic concept of the grammar and the grammar structure. So whenever I give that long task or short task for writing to my eye students and even to other students, most of the time I feel that they do the mistakes like grammar, verbs, subject verb agreement, and when they try to correct it, definitely they face the difficulties. So for the solution of this problem, I have launched a free grammar course in which I am taking my step by step different topics and trying to make the students understand that how to capture the basic structure and the basic grammar rules in your writing and in your speaking. If you follow my course, if you complete my course, inshallah, definitely you would be able to speak proper, to write proper. And that is the reason I have started this new programmer program. I have started other things, but now today I am here with you people, for you people, by taking the topic active and passive voice. Sometimes some students feel that when they write something, when they try to use the sentences in their essays, in their long task, or in other things, when they need to make the sentence in the passive form, most of the time we see that they commit the mistakes. सो दैट्स द रीज़न कि आज हमने जो प्रोग्राम बनाया है जिसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है, वो ये है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है उनको बेसिकली कैसे यूज़ किया जाता है और उनके सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो ये इतना सिंपल तरीका जो है वो मैंने अडॉप्ट किया है कि किसी भी जूनियर क्लास का स्टूडेंट्स हो या हायर क्लास का स्टूडेंट्स हो, इसको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड भी करेगा और इसको समझेगा भी, और बड़े आराम से जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट टेंसेस को डिस्कस करते हुए एक बात लाजमी डिस्कस करेंगे कि आपको बिफोर अंडरस्टैंडिंग द पैसिव वॉइस यू विल हैव टू गेट द कंप्लीट आइडिया अबाउट द ग्रामर स्ट्रक्चर ऑफ द टेंसेस। और at the moment, I can't explain in the long way the grammatical rules related to tenses. For that purpose, you will have to watch my another video. That's the name is 12 tenses in one video. जब आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ग्रामेटिकली टेंसेस की समझ आ जाएगी, तो उसके बाद आपको पैसिव वॉइस की समझ आएगी। अगर आपको टेंसेस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते। सो इसके लिए अभी हम इस तरह इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने जो टेंसेस लिए हैं एक्टिव वॉइस में, हम लोग जिस मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे वो है हमारे पास इंडेफिनिट टेंसेस। और इन इंडेफिनिट टेंसेस में हम लोग क्या करने लगे हैं कि बेसिक कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इंडेफिनिट टेंसेस के, और इसके बाद आपको इंशाल्लाह इन इंडेफिनिट टेंसेस के जो प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हो, पास्ट डेफिनिट टेंस है या फ्यूचर, तीनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। लाइक अब आप देखिए indefinite tenses में first we will talk about the present definite tense, then past indefinite tense, then future indefinite tense. So for that purpose सबसे पहले जो हम लोगों ने की पॉइंट याद रखना है वो है ये वाला पॉइंट, always use the third verb. पैसिव वॉइस किसी भी किस्म का हो, याद रखना आपने बहुत अच्छी तरह कि किसी भी किस्म का हो तो पैसिव वॉइस यूज कर सेंटेंस यूज करते हैं हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। दैट्स फाइनल। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसमें इज आर एम बेसिकली टेंस में यूज नहीं होता। टेंस में तो सिंपल होता है, मसलन ही गोज, वो जाता है।
और अगर मैं इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करूंगा तो वो मैं बोलूंगा ही डज नॉट गो, और अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव यूज करूंगा तो मैं बोलूंगा डज ही गो। तो लेकिन अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें यूज करना पड़ेगा इज और एम। ये हमें पैसिव फॉर्म में यूज करते हुए हेल्पिंग वर्ब यूज करने पड़ेंगे, बस आपने ये याद रखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो ऑलरेडी हमारे पास हो गया है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम यूज होगा और फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब हम दूसरी बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करें तो उसमें भी बड़ा सिंपल सा आइडिया होता है, वो आता है वाज और वर, और इसी तरह फॉर्म थर्ड यूज होगी। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देन दैट इज वेरी सिंपल, वी यूज इन दीज सेंटेंसेस द वर्ब विल बी एंड शैल बी। और अगर हम बात करते हैं इनके एक्टिव टेंसेस में, तो पास्ट इंडेफिनिट में तो आपको पता है वाज वर बेसिकली यूज नहीं होता, उसमें सेकंड फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड का यूज होता है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों का विल और शैल यूज होता है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस यूज करेंगे तो वो बन जाएगा विल बी और शैल बी। अब अगर हम एग्जांपल, एक एक पॉइंट और रह गया, सॉरी, और वो पॉइंट ये है कि जब भी आप पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाते हो ना, तो जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में तब जो है वो तरतीब करते हैं। वो कैसी कि जो सब्जेक्ट हो रहा होता है उसको ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट जो होता है उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, अब यहां हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट में यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, यानी ये बाद में आ जाएगा। अब अगर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हेयर वी सी के ही प्लेज फुटबॉल। अब अगर हम ही प्लेज फुटबॉल की एग्जांपल लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट डेफिनेट के टेंस के हिसाब से सब्जेक्ट लगा है ही, प्लेज लगा है वर्ब, और उसके बाद फुटबॉल ऑब्जेक्ट लगा है। लेकिन इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने पहले जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना देना है, तो ये हमारे पास फुटबॉल जो पहले ऑब्जेक्ट था अब ये सब्जेक्ट बन गया है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में इज आर एम लगना है, तो लिहाजा फुटबॉल चूंकि सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमें इज लगाना होगा, इज लगा दिया। और अब ये जो प्ले वर्ब है, वर्ब चूंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो इस वाले से हम देख रहे हैं कि बन जाएगा प्लेड, और ये जो सब्जेक्ट था ही, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हुए बाई हिम कर देंगे, तो ये सेंटेंस ये बन जाएगा फुटबॉल इज प्लेड बाई हिम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था कॉन्सेप्ट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का। और एक बात याद रखें, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के मेथड हैं वो टेंसेस की तरह ही है, सेम है। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे नेगेटिव बनाते हुए, और इंट्रोगेटिव बनाते हुए जो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं उनको सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो वो बन जाएगा फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाई हिम, और इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो वो बन जाएगा इज फुटबॉल प्लेड बाई हिम। Is it clear? Now we talk about the past indefinite. अब past indefinite में अगर हम बेसिक आइडिया लें तो टेंस में जो बनता है वो तो मसलन ही रोट अ लेटर, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म लगती है। और अगर हम इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएं तो हम डिड का यूज करते हैं, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव बनाएं तो वो बन जाता है डिड ही राइट अ लेटर। इज इट क्लियर? ये तो था एक्टिव टेंस का कॉन्सेप्ट। और अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये देख रहे, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो वाज और वार आ जाता है, और बाकी रूल सारे सेम ही अप्लाई कर देने हैं, थर्ड फॉर्म वाला और बाई और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करने वाला। तो इसके लिए एग्जांपल क्लियर इस तरह करते हैं, ही प्लेड फुटबॉल। ठीक है जी, ये है सब्जेक्ट प्लेड वर्ब और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। लेकिन अब हम पैसिव वॉइस बनाते हुए ऑब्जेक्ट को पहले लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा फुटबॉल, और फुटबॉल को देखते हुए हमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक वाज है और एक वार है, और चूंकि फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए हमें वाज लेना पड़ेगा, और ये बन जाएगा फुटबॉल वाज प्लेड बाई हिम। ठीक हो गया। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो वो बन जाएगा फुटबॉल वाज नॉट प्लेड बाई हिम। इंट्रोगेटिव बनाऊं तो बन जाएगा कि वाज फुटबॉल प्लेड बाई हिम। सो सिंपल। नाउ वी टॉक अबाउट द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस सिंपल मैं आपको पहले बता देता हूं वो कैसा होता है। मसलन आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर, फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब शैल। ही विल राइट अ लेटर, ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब और राइट फर्स्ट फॉर्म।
लेकिन जब वैसे ही हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। यानी ये एक्टिव वॉइस में तो देखें ना, ही विल प्ले फुटबॉल। अब अगर हम इसको जो है वो एक्टिव वॉइस टेंस में आता है, ये ही विल प्ले फुटबॉल, विल का कॉन्सेप्ट है, प्ले फर्स्ट फॉर्म हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले लगा लेंगे, बन जाएगा फुटबॉल, और फुटबॉल के साथ ज़ाहिर बात है विल यूज़ होगा, तो यहाँ हम उसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस का देखते हुए हमें ये चेंज करना पड़ेगा, और ये विल के बजाय आ जाएगा विल बी। और बाकी रूल के मुताबिक वही थर्ड फॉर्म, प्लेड बाई हिम। तो ये सेंटेंस बन जाएगा फुटबॉल विल बी प्लेड बाई हिम। और अगर हम नेगेटिव बनाएं तो हमें विल के बाद नॉट लगाना पड़ेगा, और वो बन जाएगा फुटबॉल विल नॉट बी प्लेड बाई हिम। और अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो ये बन जाएगा विल फुटबॉल बी प्लेड बाय हिम। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये पैसिव वॉइस इंडेफिनिट टेंसेस का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। और इंशाल्लाह अगर आप इसको कंप्लीट टॉपिक को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको फिर नेक्स्ट वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी। ये पैसिव वॉइस की पार्ट 1 की वीडियो है। इसके बाद हम परफेक्ट पास इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूस डिस्कस करेंगे, परफेक्ट यूज़ करेंगे, और डिफरेंट अदर मेथड्स जो पैसिव वॉइस के हम वो यूज़ करेंगे। और आप इस चैनल को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस ग्रामर कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget uh, to press the bell icon button, so that you would be able, so that you may be able to get the proper next videos for your learning and for your complete course. Thank you very much.